Yes, good morning students. As yesterday we have discussed about the Dalton's atomic theory. उसमें हमने क्या कहा था? Atom is indivisible in the nature. Right? Indivisible in nature means which cannot be further divided into the simpler particle. Means atom is the smallest unit. So मतलब क्या? Atom is the smallest unit of matter. Right? So what are atom? Atom is the smallest unit of the matter. For example, there is a building. In the building, there are the layers of the bricks are created, and you will see that what will be the smallest unit in that building? In that building, the bricks are there, and when you divide the brick further, what will happen? A sand gravel. A sand will be found that cannot be divided further. Can't be divided further. What does it mean? This sand is the smallest unit of building. जो ये सैंड का एक पार्टिकल है जो हमें दिखाई भी दे जाता है वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है इसकी एक बिल्डिंग की. तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. द साइज ऑफ द एटम में वेरी. इसका जो साइज है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मैटर. कि कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको एटम का साइज बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको एटम का स्मॉलेस्ट यूनिट का साइज क्या दिखाई दे जाएगा. So what is atom? Atom is the smallest unit of the matter and which can be not be divided further. According to the Dalton's atomic theory, you are having a building. In that building, the bricks are present. In that bricks, when you are dividing further, a stage will be reached in which there are a sand particle will be taken, and that particle is the smallest unit of the building. So in that case, what we will say that the sand is the atom of that building. क्योंकि एटम को मैंने क्या बोला स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ एन एटम. ये साइज ऑफ एन एटम बताना कि क्या हो सकता है. द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल. ये इतना स्मॉल है वी कैन नॉट इमेजिन व्हाट विल बी द साइज. व्हाट विल बी इट विल स्मॉलर इन द साइज. So it can be generally measured in nanometer. Nanometer. What do you mean by nanometer? That will be 10 to the power minus 9. And in 1 nanometer is the number 10 to the power minus 9. And the atom, according to Dalton's atomic theory, the atom is spherical in the shape. Yes. So जो मैंने क्या कहा था size of atom it is so small we cannot imagine how it is smaller in the nature and it will be measured in the nanometer and 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. According to the John Dalton, the atom is spherical in the shape and its size will be measured in form of the radius. Yani radius of an atom is generally measured in nanometer means 10 to the power minus 9 meter. As I told you, the size of an atom vary depending upon the type of the matter. जैसे मैं कहूँगी जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका साइज अलग है, जो सैंड है उसका साइज अलग है, सैंड के पार्टिकल का साइज अलग है, हाइड्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटल्स आर प्रेजेंट व्हिच आर हैविंग द डिफरेंट साइज. फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन, यदि मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो इसका जो साइज होगा दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के बराबर, यानी 10 नैनोमीटर 0.1 नैनोमीटर के बराबर होगा ये आपका. यदि मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8. उसके बाद बात करें आपकी जो हीमोग्लोबिन है हमारी बॉडी के अंदर Hb बोलते हैं, उसके मॉलिक्यूल की बात करूं तो द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 minus 8 मीटर. और यदि मैं सैंड के पार्टिकल की बात करूं दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर. और वाटरमेलन जो अपने आप में खुद एक एटम है तो उसकी बात करूं दैट विल बी 10 टू द पावर
ईटा के बराबर होगा। So what will be that? कि the size of an atom varies and it may be 10 is power minus 10 meter to 10 is power minus 1 meter तक भी जा सकता है, depending upon the type of the matter, right? कि एक बहुत सारा बड़ा सा फार्म है, उसमें हमने क्या वाटरमेलन की फार्मिंग की जैसे, तो उसमें एक वाटरमेलन किसके बराबर होगा, वो एक एटम के बराबर होगा, तो उसका जो साइड है वो 10 is power minus 1 है। जो सैंड है, जो आपकी बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग के अंदर जो आपकी ब्रिक्स लगाई गई है, ब्रिक्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज द सैंड, उसका साइड देखोगे 10 is power minus 4 होगा। और जो हम पानी पी रहे हैं, पानी की एक जो मॉलिक्यूल होगा उसका साइड 10 is power minus 9 होगा। जो हीमोग्लोबिन है, जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके जो साइड होगा 10 is power minus 8 होगा। जो हाइड्रोजन दैट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, उसका साइड कितना होगा 10 is power minus 10। अब हम कह रहे हैं कि जो साइज ऑफ एटम है इट इज सो स्मॉलर, और फिर हमें इसको इतनी केयर करने की जरूरत क्यों है? It means that it plays an important role in our life because all the matters in the universe is made up of your atom. कि जितने भी मैटर है यूनिवर्स के अंदर वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं? एटम के बने हुए हैं। और जब इसकी हमने वो की गई, इसको हाई पावर के अंदर देखा गया, तो इट इज पॉसिबल टू चेक द साइज ऑफ योर एटम। तो उस टाइम पे हम उस एटम के साइज को क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं, उसके एटम के साइज को हम निकाल सकते हैं। जब उसको हाईली मैग्नीफाइड करके देखा गया, so the size of atom can be calculated or the shape of an atom is also calculated, and all the matter is made up of an atom. That's why it is very easy to study, it is important to study about the atom, its structure, its atomic masses and the different type of the properties of an atom. इसलिए हम इसकी ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद हम बताते हैं मॉडर्न डे कि देयर आर द टू टाइप ऑफ द सिंबल्स आते हैं। दो टाइप के सिंबल्स होते हैं, एक को बोलते हैं मॉडर्न डे सिंबल और एक को बोलते हैं आपके जैसे जॉन डाल्टन है, जिसने सबसे पहले एटम के बारे में बताया और एटम का बताया, एटम के बारे में, उसके सिंबल्स के बारे में बताया, which are having the different type of the symbols using the different type of the element, right? उसी के साथ साथ एक बर्जीलस साइंटिस्ट था जिसने सिंबल्स दिए एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और एन एन, राइट, व्हिच आर वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे बर्जीलस में क्या, हाइड्रोजन का H होता है और कार्बन का C होता है, क्लोरीन का Cl है, गोल्ड का Au है, सिल्वर का Ag है। तो ये सारे के सारे, ये कार्बन का सिंबल है, ये क्लोरीन का सिंबल है, ये गोल्ड का है, and it is of your symbol, right? So these are the symbols which are given by the scientist Berger. तो उसी तरह से John Dalton gives some symbols, and these symbols, as he told that all the atoms are spherical in the shape. तो उसका जो सबसे पहले दिया गया था वो spherical shape दिया गया था। ये spherical shape के अंदर उसने different type के shapes बनाई और उसके ऊपर नाम दिए that are the symbol of the different type of the element. First जैसे ये spherical shape है, इसके अंदर एक डॉट लगा दी तो दैट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। किसका सिंबल हो गया ये? हाइड्रोजन, राइट? ये खाली बना दिया आपका, ये किसका सिंबल हो गया? ऑक्सीजन, ब्लैक। और इसी को अंदर से आपका क्या कर दिया? कलर्ड कर दिया ब्लैक कलर से, दैट इज द सिंबल ऑफ कार्बन। और इसी के अंदर आई लिख दिया, दैट इज द सिंबल ऑफ आर्गन, राइट? उसी तरह से उसने इसी स्फेरिकल के अंदर S लिख दिया, दैट इज द सिंबल ऑफ सिल्वर। He gave some symbols of the atom by using the spherical shape because he told that the atom is spherical in the shape. तो सिल्वर ने बताया आपको। उसी तरह से सल्फर के अंदर उसने क्या किया? ऐसे क्रॉस का निशान बना दिया, दैट इज द सिंबल ऑफ द सल्फर। These are the symbols which are given by the John Dalton. उसी तरह से फास्फोरस के अंदर ऐसे ट्रायंगल शेप बना दी, that will be the symbol of phosphorus, right? Like that, कॉपर के लिए उसने बीच में ऐसे करके C लिख दिया, तो that will be the symbol of copper. Otherwise, if we will remove that, it is a symbol of carbon. But इसके चारों तरफ spherical shape बना दी, so according to John Dalton, it is a symbol of the copper. Like that, कि L लिख दिया बीच में, तो ये किसका symbol हो गया? आपका lead का symbol हो गया। उसी तरह से ये ऐसे करके G लिखे और यहाँ पे ऐसे फिल कर दिया इसको, that is of
गोल्ड का हो गया, प्लेटिना के लिए P लिख दिया, जो हम प्लेटिनम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मेटल। और जो मरकरी है, मरकरी के लिए सिंपली ऐसे करके और इसको ऐसे यहाँ से क्या कर दिया, डार्कन कर दिया, and no one, nothing will be written in between that. That is the symbol of the mercury, right? So these are the symbols which are given by the John Dalton. If we will try to write the formulas according to this, मैम हाँ प्रमाश बोलिए। मैम एक तो ये डाउट था कि जब एटम इतने छोटे होते हैं तो फिर उनको इतने छोटे लेवल तक कैसे डिवाइड कर सकते हैं? बेटा वही तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो एटम है, तभी तो मैंने कहा कि दैट विल बी फर्दर डिवाइड इनटू द थ्री पार्टिकल्स, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बिना तो एटम आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो चैप्टर पहले देना चाहिए था, ये चैप्टर बाद में देना चाहिए था, नो डाउट। बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पहले आपको यही चैप्टर करवाएंगे। और उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन वो है आपका एटम है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको प्रोटॉन नेम दे दिया गया, जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया। तो उसी के बेस पे किया गया था ये सारा का सारा, ठीक है बेटा। अब ये देखो, ये इतने सारे सिंबल, अब मुझे वाटर का सिंबल बनाना। वाटर क्या होता है, हम लिखते हैं H2O। व्हाट डू यू थिंक हाउ आई विल मेक द सिंबल? क्या मैं ये सिंबल ऐसे करके और या यहाँ पे ऑक्सीजन लगाऊंगा, या दो हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन लगाऊंगा? It is symbol of water according to the John Dalton, right? It is the symbol. मैं कहूँगी ये water का ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये क्या की हाइड्रोजन है। This is the symbol of the water according to the John Dalton. And if I am going to write it again and again, it is very difficult to learn all the symbols like in the spherical form. So उस टाइम पे जो एक साइंटिस्ट थे बर्चिलस, उसने डिफरेंट टाइप के क्या दिए, सिंबल्स दिए, एंड विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, एंड दैट सिंबल इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस है, डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ दैट एलिमेंट। वो फर्स्ट अल्फाबेट के ऊपर क्या कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ओ ले दिया, हाइड्रोजन का एच ले दिया, कार्बन का आई ले दिया। अब आप कहोगे कि आयरन का तो एफ ही है, लेकिन यहाँ पे तो IRON लिखा, IR होना चाहिए, ऐसे कॉपर का CO होना चाहिए। लेकिन there are the different type of the methods for calculating the symbols of these elements. How these methods are used, I will tell you one by one. जो शुरू में था, बिगिनिंग में था, जो शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग की गई नाम की, तो उन लेटर्स को आइडेंटिफाई किया गया, नेमिंग दी गई डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजिन, कि वो कहाँ से मिले, उनके बेस पे आकर दिया गया। जैसे क्यूप्रम है, CUPYRM, क्यूप्रम है, आई थिंक स्पेलिंग इज सिप्रस। सिप्रस आपका किसका, यहाँ पे सबसे पहले कॉपर दिया गया, तो यहाँ से इसको नाम दिया गया CU। उसी तरह से जो गोल्ड है आपका AU नाम देते हो, दैट इज गोल्ड, इट इज ड्यू टू इट्स कलर, दैट विल बी येलो इन कलर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। येलो इसलिए इसको नाम दिया गया क्या, गोल्ड का। लेकिन बाद में IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, International Union of Pure and Applied Chemistry, according to IUPAC system, in which the different scientists are present according to the members, और पूरे वर्ल्ड के उसके अंदर साइंटिस्ट होते हैं, and they suggested the name or the symbol of the element present in that time, कि उन्होंने उनके सिंबल देने शुरू किए, and that symbol will be accepted by all over the country, all over the world। उसको पूरे वर्ल्ड ने क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि डिफरेंट जो केमिस्ट होते हैं वो सारे के सारे बैठते हैं और दे डिस्कस व्हाट विल बी द सिंबल ऑफ दैट, एंड दैट सिंबल इज डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ योर एलिमेंट। जैसे कार्बन है, कार्बन का फर्स्ट एलिमेंट क्या लिया गया, C। फॉस्फोरस है,
सिंबल किया P, राइट। उसी तरह से मैं कहूँ और कहीं जगह पे क्या किया गया, आपका फर्स्ट टू लेटर्स लिए गए, द फर्स्ट लेटर विल बी इन कैपिटल एंड सेकंड लेटर विल बी इन द स्मॉलर, नॉट ए एल, राइट। उसी तरह से जो कोबाल्ट है उसका फर्स्ट लेटर लिया गया C, कैपिटल एंड स्मॉलर विल बी सेकंड लेटर, नॉट CO। ये नहीं है कि दोनों के दोनों कैपिटल रख दिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिया गया और सेकंड लेटर आपका क्या लिया गया, स्मॉलर लिया गया, ताकि उससे पता चले। अब जैसे कुछ है किसी ने फर्स्ट टू ना लेके डिपेंडिंग अपॉन द थर्ड वन, जैसे Cl ले क्लोरीन, राइट। जैसे कईयों में क्या है, सेकंड लेटर आर्गन है, इसका AR ही लिया गया, तो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल और सेकंड लेटर विल बी स्मॉलर। और कुछ केसेस में आपका क्या लेगा, फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया गया, दैट विल बी योर क्लोरीन, जैसे Cl। and some of the alphabets are given according to their naming। ये जैसे सोडियम है, राइट, सोडियम, सोडियम का क्या होता है, हम लिखते हैं Na, जबकि इसका होना चाहिए S होना चाहिए था या SO होना चाहिए था, तो that will be the name, that name is known as lithium। उसी तरह से पोटेशियम है, पोटेशियम का हम लिखते हैं सिंबल K, वैसे तो PO या P होना चाहिए, तो that will be origin from Kenya, right। उसी तरह से आयरन का मैंने कहा, आयरन का हम क्या लिखते हैं, Fe लिखते हैं, that will be originated from its name, Latin word, Greek word, that will be fat। ये ग्रीक वर्ड से लैटिन वर्ड से लिए गए, क्योंकि वो लैटिन वर्ड एक टाइप से डेड लैंग्वेज होते हैं जिसके हर जगह एक ही जैसे मीनिंग निकलते हैं, तो वहां से लिए गए। जैसे आयरन है, फेरम है, दैट विल बी द लैटिन वर्ड, सोडियम नेट्रियम है, पोटेशियम आपका क्या है, कैलियम है। उसी तरह से जो गोल्ड है, गोल्ड का हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, AU, और इसका जो लैटिन नाम है और, फर्स्ट अल्फाबेट्स ले लिए। उसी तरह से जो सिल्वर है, सिल्वर का हम क्या लिखते हैं, AG, राइट। वैसे तो S होना चाहिए इसका, या SI होना चाहिए, but it will be from the Latin word that will be argentum। देखो इसका फर्स्ट लेटर लिया और थर्ड लेटर लिया, that will be AG। इसका फर्स्ट और सेकंड लेटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो फर्स्ट और सेकंड लेटर है that is also for the argon। यदि आप देखोगे तो ये आर्गन के लिए AR यूज किया गया, यदि हम सेम सिल्वर के लिए लेते तो वो हो जाता है, देयर विल बी कंफ्यूजन। तो इसीलिए जो IUPAC साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया गया, कहीं भी आपका फर्स्ट लेटर लिया, कहीं पे फर्स्ट और सेकंड लिया, कहीं पे फर्स्ट और थर्ड लिया, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन टेकन बाय ऑल द साइंटिस्ट, so that there will be no confusion while learning or checking about your different type of the symbols of, okay। so there are different type of symbols दिए गए हैं यहाँ पे, आपके टेबल दी हुई है, उस टेबल को आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। जैसे बेरियम का B दिया है, बोरॉन का, बेरियम का आपका क्या दिया हुआ है, B, बोरॉन का B दिया हुआ है, सिर्फ डिपेंडिंग अपॉन द need or the scientist calculated by the IUPAC system। That are the symbols of the different type of, या तो फर्स्ट लेटर लिया गया, फर्स्ट और सेकंड लिया गया, या फर्स्ट और थर्ड लिया गया, या डिपेंडिंग अपॉन देयर लैटिन वर्ड लिए गए, जिनका जहाँ पे हर जगह की मीनिंग निकलेगा। जैसे सिल्वर का दिया मैंने आपको, सोडियम का दिया, पोटेशियम का दिया, आयरन का दिया, गोल्ड का दिया। These are the Latin words from where the symbols of the elements are given। जर्मन भी हो सकते हैं, ग्रीक भी हो सकते हैं, लैटिन भी हो सकते हैं, राइट। ताकि एक यूनिक सिंबल दे दिया गया, और ये यूनिक सिंबल हर जगह क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, नो वन विल चेंज दैट सिंबल, राइट। So now we will discuss about the atomic mass। Yes। Wait, as I told you, atom is the smallest unit, but when atoms join, they will form molecules, and molecules join together to form the metal। अब हम कहेंगे कि एक ईट है या ब्रिक है, उसको जब हमने फर्दर डिवाइड करते गए, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हमने क्या नाम दिया गया, एटम दिया गया। लेकिन जो वो ब्रिक है, इसका कुछ ना कुछ, ब्रिक हैज मास, ब्रिक का क्या होगा, अपना मास होगा। तो ब्रिक किससे बनी हुई है आपकी, सैंड से बनी है,
सैंड क्या आपका एटम है, और जो एटम है इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, एंड दैट मास इज नोन एज द एटॉमिक मास, राइट। उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होगा। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम? इट इज वेरी डिफिकल्ट। Why it is very difficult? Because the size of an atom is so smaller and we are not able to calculate the atomic mass of that atom. So how you will calculate the atomic mass? So we will not calculate the atomic mass, but we calculate the relative atomic. We generally calculate the relative atomic mass. Relative atomic mass का मतलब ये है कि एक एटम का मास लेके, which can be calculated very easily, उसका लेके उसके रिलेशन करके या उससे रिलेट करके हर एटम का मास निकालना, दैट विल बी नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास। एंड दिस एटॉमिक मास इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट and is generally denoted by AM, right? In earlier time में हम पूरा लिखते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट पूरी लिखते थे, but nowadays it will be generally shown by the U, undefined mass. I think undefined mass or unified mass. Unified mass. That will be denoted by the U. तो अब जो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, जिसको एटॉमिक मास AMU, एटॉमिक मास यूनिट, नाउ इट विल बी U। जैसे मैं कहूँ कि हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास है तो मैं उसके पीछे क्या लिख दूंगी? U लिख दूंगी। पहले हम क्या लिखते थे जब हम पुराने टाइम में थे? AMU लिखते थे, राइट। अब जैसे मैं कहूँ ऑक्सीजन का 16 है तो मैं लिखूंगी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। तो हाउ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज कैलकुलेटेड? तो यानी जब हमें इसका एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो मुझे एक एटम का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले लिया गया दैट विल बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिलेट में दूसरों का निकालना है कि मान लिया ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लिया गया। व्हाई इट विल बी टेकन एज कि ये क्यों लिया गया कि ये जल्दी आपका व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दैट कि द मास ऑफ द अदर एटम विल बी कैलकुलेटेड इन रिलेटेड टू योर ऑक्सीजन। इसके दो रीजन दिए गए हैं उस टाइम पे। First reason will be that oxygen reacts with most of the elements and forms the compounds. कि बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कंपाउंड्स। समझना है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जब सबसे पहले ऑक्सीजन को लिया गया और उसके अगेंस्ट उससे रिलेट करके बाकियों का निकाला गया, तो क्यों निकाला गया? पहला ये रिएक्ट्स विद, फर्स्ट रीजन क्या दिया गया? रिएक्ट्स विद किसी का रिएक्ट करता है? मोस्ट ऑफ एटम्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स। फर्स्ट पॉइंट कैसे? राइट, जैसे ऑक्सीजन है कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ये पोटेशियम के साथ भी करता है, ये कैल्शियम के साथ भी करता है, ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, ये बेरियम के साथ भी रिएक्ट करता है, आयरन के साथ भी रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ भी रिएक्ट करेगा, सिल्वर और गोल्ड के साथ भी करता है, क्योंकि जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है वो ऐसे एलिमेंट है विच आर द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, वो जनरली किसी के साथ रिएक्ट करता है। अब देखो मैंने आपको 20 और थोड़े से बीच में बता दिया कितने सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड, राइट। सेकंड जो पॉइंट बताया गया कि इट गिव्स द होल नंबर, कि जब किसी का भी इससे रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया तो इट विल गिव यू द होल नंबर। होल नंबर का मतलब है किसी का भी इसमें जो एटॉमिक मास है वो 35.4 या 12.6 ऐसे कुछ नहीं दिए, उसने अपना सीधा या तो 40 जो भी आपका एटॉमिक मास है या 12.6 है, 12.5 ना देकर सीधा 12 दे दिया। 35.5 जो मैंने आपको क्लोरीन का बताया था वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से होता है। तो इट गिव द होल नंबर। जब इसने होल नंबर में दिया तो सम ऑफ द एलिमेंट्स आर हैविंग द फ्रैक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, so that will be rejected। तो हमने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने किया कार्बन, राइट। कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द आइसोटोप। जो कार्बन है आइसोटोप्स मैंने भी कल भी बताया था, RO
same element having same atomic number but different mass. ये बताया था जिनका एटॉमिक मास तो सेम होगा लेकिन जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा. जैसे कार्बन है 6, 12, 6, 13 एंड 6, 4. यानी जो ये कार्बन है 3 आइसोटॉप्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है. एक कार्बन 12 और 6, 12 बोलते हैं, इसको 6, 13 बोलते हैं, इसको 6, 14 बोलते हैं. बट द परसेंटेज ऑफ दीज आइसोटॉप इज वेरी लेस. लेकिन इनके जो परसेंटेज है वो इतनी लेस है और मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. और इसी से आपका क्या निकाला गया, कार्बन का निकाला गया कि दैट विल गिव द एग्जैक्ट एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट. कि इससे पता चल गया कि कोई भी एलिमेंट है उसका कितना एटॉमिक मास है. दैट विल बी इजीली कैलकुलेटेड बाय द कार्बन आइसोटोप. एंड ये कार्बन 12 है, इसको बोलते हैं कार्बन 12, यानी विच आर हैविंग द एटॉमिक नंबर मास इज योर कार्बन 12. और इसी के अगेंस्ट सबका एटॉमिक मास निकाला गया और आज तक यही चलता रहा है और इसी को स्टैंडर्ड मान के चला गया. इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया था, जस्ट लाइक द वाटरमेलन. आपका कोई भी वाटरमेलन है, जैसे ये वाटरमेलन है और उसके आपके कितने टुकड़े हैं, 12 टुकड़े उसमें. आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. राइट. तो देयर आर द 12 की एक वाटरमेलन है और उस वाटरमेलन को किसके बराबर माना गया, 12 यूनिट्स. राइट. तो जो फ्रूट सेलर था उसने क्या किया, he cut the watermelon into the 12 parts. इस watermelon को उसने 12 parts में काट दिया and each part is of 1. हर पार्ट किसके बराबर हो गया, 1 यूनिट के बराबर हो गया. और उसने हर फ्रूट को क्या किया, सेल किया या सेल कर. उसी तरह से जो कार्बन 12 है इसको 12 पार्ट्स हो गए और इसी के अकॉर्डिंग आपका मास निकाला गया था एटम का और जिसको बोला गया रिलेटिव एटॉमिक मास एंड दैट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट. तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगा, नीचे वाला हमने करी. तो 1 एटॉमिक मास यूनिट. तो जो इससे जितना ज्यादा हैवी होगा वो सीधा क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक मास हो जाएगा उस एलिमेंट का. इस मास यूनिट इक्वल टू 1/12 of mass of कार्बन 12. यानी वही सेम चीज होगी कि कार्बन का 1/12 वन पार्ट हो गया एंड दैट वन पार्ट इज नोन एज योर एटॉमिक मास यूनिट. अब ऑक्सीजन का उस एक यूनिट से देखा जाए तो 16 टाइम्स आपका हैवी रहा है तो उसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 हो गया. जैसे कैल्शियम उसका देखा तो उसका 40 टाइम्स हैवी रहा है तो देखा है कि उसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 40 हो गया. तो दैट विल बी 1 एटॉमिक मास यूनिट और इसको बोला गया फ्रूट मास. एक फ्रूट के पार्ट से हर पार्ट को क्या किया, सेल किया तो दैट विल बी नोन एज फ्रूट मास यूनिट. और एटम के अंदर क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक मास यूनिट. दैट इज अ मास यूनिट इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12. कि जो कार्बन 12 का जितना मास है उसको 12 से डिवाइड कर दे और जब 12 से डिवाइड करेंगे तो जो पार्ट आएगा दैट विल बी नोन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट. अब मान लो ऑक्सीजन का इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया इनटू C12 12 इसका हो गया तो देखा कि इतने टाइम्स हैवियर आया तो देखा वो 16 आया तो दैट विल बी इक्वल टू 16 एटॉमिक मास यूनिट और 16 यूनिफाइड मास. That is the atomic mass or atomic mass unit. Understand? Is there any doubt related to that? उसी से देखा गया तो हाइड्रोजन का कितना आया, 1 आया. कार्बन का कितना आया, 12 आया. ऑक्सीजन का देखा तो 16 आया. कैल्शियम का देखा तो 14 आया. सोडियम का चेक किया तो 23 आया. तो there are the different type of the elements which are having the different atomic mass and that will be calculated by taking the carbon 12 and that carbon 12 is taken क्यों, क्योंकि इसके isotopes present है but the isotopes of these elements are very less in the atmosphere. अब जब वेरी लेस एटमॉस्फेयर के अंदर तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ही है तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास निकाला गया दैट विल बी कम्स आउट टू बी 12. और उस कार्बन 12 को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 12 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक पार्ट कितने के बराबर हो गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर हो गया.
जैसे फ्रूट सेलर ने वाटरमेलन को 12 हिस्से में डिवाइड किया, हर एक पार्ट एक फ्रूट यूनिट के बराबर हो गया, फ्रूट मास यूनिट के, और उससे उसने हर फ्रूट को क्या किया गया, सेल किया। उसी तरह से एटॉमिक मास यूनिट में भी कार्बन 12 का 1/12 किया गया, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। और जो एटम इस एटॉमिक मास यूनिट से जितना ज्यादा हैवियर होगा, आपका एलिमेंट का एटॉमिक मास और एटम का एटॉमिक मास ही अंडरस्टैंड। तो अब मैंने कहा हाउ द एटम एग्जिस्ट। अब ये जो एटम है इतने स्मॉलर इन द साइज है, तो व्हाट डू यू थिंक, कैन दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द एटमॉस्फेयर? सम ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द एटमॉस्फेयर। जैसे सोडियम मेटल है, वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, कार्बन आपका फ्रीली एग्जिस्ट करता है, सिल्वर है या गोल्ड है, या थोड़े से एलिमेंट्स के साथ आपके मिक्स करते हैं, तो यानी दे कंबाइन विद द अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स और द मॉलिक्यूल्स, राइट। अब जैसे ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन देखोगे O2 की फॉर्म में मिलती है, हाइड्रोजन गैस देखोगे H2 की फॉर्म में मिलती है, नाइट्रोजन गैस देखोगे N2 की फॉर्म में मिलती है। ओजोन लेयर व्हिच प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशन, ओजोन लेयर बनाते हैं, वो O3 की फॉर्म में मिलेगा। जो फास्फोरस है वो P फॉर्म की फॉर्म में मिलता है, S8 की फॉर्म में मिलता है। यानी ये जो एटम है सल्फर, ये अकेला नहीं मिलेगा, जब 8 यूनिट इसके साथ कंबाइन करेंगे, यानी 8 ऑक्सीजन सल्फर एटम आपस में क्या करेंगे, तब ये अर्थ पे कम रहेगा। उसी तरह से पी के फास्फोरस के 4, उसी तरह से ऑक्सीजन के 2, इससे ये। अब जैसे हीलियम है वो सिंगल होता है, जो नियोन है वो आपकी क्या कहते हैं, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। These type of the gases are known as the noble gases. In the gases form are present and they exist independently and do not react with other, and these type of the gases are known as the noble gases. So we will discuss the when atoms combine together they will form the molecules. And yes, tomorrow we will discuss about the molecules and the types of the molecules. उसमें molecule of element भी पढ़ेंगे जिसमें एक ही टाइप के कंबाइन करेंगे, और molecules of combined compound भी करेंगे जिसमें दो डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे बट इन अ फिक्स्ड रेशियो। और आयंस क्या होते हैं, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग